Good morning student. Today we learn some basic operation in Excel, that is in data manipulation and analysis. Now we learn Format Painter, the working of Format Painter, then how to add header and footer, text box, symbols, then how to protect our sheets, workbook, like that. Yes, so let us see one by one. Okay, now in the Excel sheet we already learned these two operation, that is the sum and the average, two different function we already learned in the last session. Now today we learn some insert tab operation. Like first of all we insert some text box. Yes, so for that you can select this insert tab and in that you can select this text box. I can select the text box and whenever I want I can just drag it. Yes, and then I can write some information in that, like mark sheet for students of FYBCA. Yes, if I want to format this, then I can format it as well. So formatting, like I can set this alignment, top alignment, center alignment, bottom alignment. Yes, if I want to set as a center, then center, then left, center, right, like that. I can set center like that. Then in the format option, you can format your box like this. यहाँ पे आपका डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिफॉल्ट फॉर्मेट कर सकते हो. यस, फाइन. इफ यू डोंट वांट द डिफॉल्ट फॉर्मेट, देन यू कैन सिलेक्ट दिस शेप फिलिंग ऑप्शन from over here and you can fill the shape as you want, like this, and change the font as well from selected and change it like this. You can change it the color, then you can change the color like that. Yes, from the format, if you want to change the shape outlines or that means colors and all, if you don't want to give outline, then select the no outline like that. Yes, so over here you can set this text box. Yes, आप इस तरह से ये text box को format कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो. Even if you want to set like this, then you can set it and insert some shapes as well from over here, and from over here you can insert the shape like that. Yes, तो आप यहाँ पे shape ऐसे set कर सकते हो और ये marksheet like this. Yes, all of you. Yes, instead of the text box, if you want to insert some shapes like that, you can select the shape from over here. There are various shapes are there, so you can select the shape like that. For example, you can select this shape. अगर कुछ आपको information यहाँ पे डालनी है कि for example जैसे कि overall result and all, then you can select it and you can write it. For over here, select the edit text from the right click and overall result of FYBCA is 100%. ऐसा करके मैं कोई यहाँ पे डिफरेंट शेप्स डाल सकती हूँ. शेप में अगर आपको कुछ अलाइनमेंट सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो लाइक दैट. शेप के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग मैंने टेक्स्ट बॉक्स में सिखाए वो सारे फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी आप कर सकते हो लाइक दैट. यस, फाइन. देन यू कैन सिलेक्ट द इफेक्ट, देन यू कैन सिलेक्ट द इफेक्ट फ्रॉम ओवर हियर, सेट सम इफेक्ट्स लाइक दैट. यस, तो ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो. ये टेक्स्ट लिखी है तो टेक्स्ट के अंदर कुछ सेट करना है डिफरेंट तरीके से तो वो भी कर सकते हो लाइक दैट. यस, नाउ इन दैट शेप you can try to change some another shape in this option. So what you have to do, you can change the shape as well. आप यहाँ से कोई भी shape already ये लिया है पर इसकी जगह पे कोई shape और change करना है तो आप edit कर सकते हो, edit point कर सकते हो, change shape कर सकते हो. For example इसकी जगह पे ये वाला चाहिए, then for example you can change the shape like that.
इट इज लाइक दैट। तो आप यहाँ से कोई भी शेप को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आपको शेप के कोई पॉइंट्स चेंज करना है देन एडिट द पॉइंट्स। आप यहाँ से इस तरह से कोई पॉइंट्स एडिट भी कर सकते हैं। यस, आपको जिस तरह का शेप बनाना है आप वो शेप बना सकते हो। फाइन ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द इंसर्ट द शेप एंड insert the text box. You can write some information in the text and shape both as well. Fine. If you want to delete then select it and just press the delete key. आप delete कर सकते हो. Fine. Now after that, for example, ऐसी सेम शीट मैंने दूसरी जगह पे बनाई है, इसको मैं कॉपी करके दूसरी शीट में फॉर एग्जाम्पल पेस्ट कर दे रही हूँ. ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर ये जो सेल है उसमें फॉर्मेटिंग की लाइक दैट. यस, और फॉन्ट कलर. अभी ये जो फॉर्मेटिंग है ऐसा ही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ करना है, ये जगह पे करना है, बहुत सारी जगह पे करना है. सो मैं वापस वही सब स्टेप फॉलो करूँ, उससे बेटर कि मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकती हूँ. सो हाउ टू यूज द फॉर्मेट पेंटर? यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर लाइक सिलेक्ट दिस सेल एंड फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर का वर्क क्या है? इट विल सेव और इट विल कॉपी ऑल योर फॉर्मेटिंग एंड पेस्ट वेन एवर यू वॉन्ट. यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स, सेल, शेप सिलेक्ट किया है उसमें जो फॉर्मेटिंग दिया होगा वो जस्ट फॉर्मेटिंग कॉपी होगा और अप्लाई कर सकते हो आपको जहाँ पे चाहिए. मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर लिया, दैट्स व्हाई इट विल गिव मी द शेप्स लाइक दैट. सिंबल देखो मेरा ये चेंज हो गया कर्सर का. देन जहाँ पे मुझे चाहिए उसको मैं वहां पे क्लिक करूंगी. हो गया. अगर ये पूरी टेबल में सेट कर रही हूं, फॉर एग्जाम्पल ये पूरा टेबल में यहां से फॉर्मेटिंग कर रही हूं. यस, इट इज जस्ट लाइक फाइन. और ये फॉर्मेटिंग कॉपी कर रही हूं फॉर्मेट पेंटर एंड देन पूरा यहाँ पे सेट कर सकते हो. जहां जहां पे चाहिए आप वो सिलेक्ट करके ले जा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो. यहाँ पे चाहिए पूरा, देन यू कैन सिलेक्ट इट लाइक दैट. यस, so दिस इज द यूज ऑफ द फॉर्मेट पेंटर. आपको 1 by 1 स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे बहुत बार. यस, जब आप फॉर्मेट पेंटर यूज करोगे तो आपने जहां पे एक बार सेल पे फॉर्मेटिंग कर लिया वही फॉर्मेटिंग आपको और जगह पे चाहिए तो आप दूसरी जगह पे भी फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से कर सकते हो. फाइन. तो दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर. नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी how to add header and footer into your sheets. Yes, आपको अगर आपकी वर्कशीट के अंदर पर्टिकुलर शीट के अंदर हेडर एंड फुटर ऐड करना है सो आप कैसे हेडर एंड फुटर ऐड कर सकते हो. यस, सो फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू ऐड हेडर एंड फुटर इन द शीट 2. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट ओपन शीट 2 and then insert tab. I can select the header and footer option. From the insert I can select this header and footer. I can just click over here header and footer, then it will show me the header part and the footer part. Header and footer part मुझे डिस्प्ले कर रहा है. ठीक है. यस, अगर मुझे पर्टिकुलर हेडर में जो चीज चाहिए वो 3 सेक्शन में डिवाइड करनी है. यहाँ पे लेफ्ट सेंटर, देन सेंटर एंड राइट. यस, फ्रॉम ओवर हियर एज वेल यू कैन सेट इट लाइक दिस. हेडर में सेंटर में डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, ऐसा. अगर फुटर में जाना है तो यू कैन जस्ट सी ओवर हियर द न्यू टैब्स फॉर द डिजाइन ऑफ द हेडर एंड फुटर एंड गो टू द फुटर ऑप्शन. जस्ट क्लिक ओवर हियर फुटर. सो आपका कर्सर फुटर में आ जाएगा. फुटर में भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है आपका लाइक दैट, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. ओके, सो वापस आपको हेडर में जाना है, जस्ट गो टू द हेडर. नाउ इन द हेडर आप हेडर एंड फुटर में ये सारे ऑप्शन डाल सकते हो. सो 1 by 1 पेज नंबर, दैट मीन्स आपको मैन्युअली 1 2 3 4 पेज नंबर डालने की जरूरत नहीं है. इफ यू कैन सिलेक्ट दिस पेज नंबर, ऑटोमेटिकली एक्सेल आपका पेज नंबर सिलेक्ट कर लेगी. नंबर ऑफ पेजेस, टोटल पेजेस कितने हैं वो डिस्प्ले करवाने हैं. देन यू कैन एड दिस नंबर ऑफ पेजेस टू द हेडर एंड फुटर एज वेल. If you want to add current date, if you want to add current time, if you want to add or display the file path, then you can select this file path option as well. If you want to display in header or footer file name, yes, so you can select this file name. Instead of file name, if you want to add sheet name, then you can add the sheet name in header and footer. If you want to add some picture in header or footer, so you can add it.
Yes, so for example, in the header part, I can select this left section. In the left section, I can give the file path या तो file का नाम. Yes, so file name. So you can display like this. In the center, I want to add some picture. So I can add this picture. Yes, यहाँ से मैं picture add कर सकती हूँ. आपको जो picture add करना चाहिए. You can select any of the picture from over here. आप कोई भी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. यस, पिक्चर की साइज और ये सब भी आप सेट कर सकते हो डिफरेंट तरीके से. देन इफ यू वांट टू ओके चलो साइज सेट करना है तो फॉर्मेट द पिक्चर. उसकी हाइट और विड्थ कम करनी है मुझे तो हाइट और विड्थ में कम कर सकती हूँ लाइक दैट. यस, क्योंकि हेडर में आ रहा है, फुटर में आ रहा है तो आप उसकी हाइट और विड्थ कम कर सकते हो. ओके, देन इन द राइट सेक्शन, यहाँ पे अगर मुझे राइट सेक्शन में कुछ डालना है, फॉर एग्जाम्पल शीट का नाम डालना है. यस, तो आई कैन सिलेक्ट दिस शीट नेम लाइक दिस. यस, कुछ टाइटल डालना है तो मैं यहाँ पे शीट के नेम के आगे भी टाइटल डाल सकती हूँ, जैसे कि like this. Yes, fine. Now same way go to the footer. Footer में मैं चली जाती हूँ. Normally footer में क्या होता है, if you add a page number, if you add a title and if you want to add current date and time, then you can add it. So in the center या right portion I can add the page number. पेज नंबर के बाद कौन सा नंबर है और कौन सा पेज आएगा, दैट इज देखो यहाँ पे देखो पेज 2 of 2, दैट मीन्स सेकेंड नंबर के पेज में मैं वर्क कर रही हूँ और टोटल मेरे पास 2 पेज है. सो इट इज लाइक दैट. यहाँ पे ऐसा हम पेज नंबर और नंबर ऑफ पेजेस ऐसा भी डाल सकते हैं. तो इधर आएगा 10 पेजेस, उसमें से आप जो पेज पे करंटली वर्क कर रहे हो वो डिस्प्ले करेगा पेजेस और पेज नंबर. देन इफ यू वांट टू ऐड ओवर हियर लाइक करंट डेट और साथ साथ में स्पेस के बाद टाइम, दोनों चीज में डाल सकती हूँ. इन द सेंटर यू कैन ऐड फॉर एग्जाम्पल योर टाइटल, फॉर एग्जाम्पल रॉफेल BCA. यस, इतना मैंने हेडर एंड फुटर में ऐड कर दिया. देन यू कैन सी द हेडर एंड फुटर ओवर हियर. दिस इज द हेडर. यस, एंड आपको परफेक्टली देखना है. आपको कहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हेडर एंड फुटर हम स्पेशली किसके लिए ऐड करते हैं, प्रिंट आउट पर्पज के लिए. यस, सो इन गो टू द फाइल and you can select this print option. Then you can see the print out option. So over here you can see the name and all. Fine all of you. So इस तरह से आपको header and footer add करना है तो आप कर सकते हो. Fine. Yes, this is the header and footer. Now into go to the sheet 1. मैं sheet 1 पे, ये sheet 2 है मेरी जहाँ पे मैंने header and footer add किया. Yes, यहाँ पे मैं sheet 1 पे आ जाती हूँ. After that, if I want to प्रोटेक्ट माई शीट. यस, मुझे मेरे शीट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई शीट तो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा. हाउ टू प्रोटेक्ट द शीट, ये मेरी शीट है और यहाँ पे फॉर्मेट नाम का ऑप्शन है. सो यू कैन सिलेक्ट दिस प्रोटेक्ट शीट. जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड गिव द पासवर्ड. यस, मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में पासवर्ड दिया. यस, ये मेरी शीट प्रोटेक्ट हो गई. इसके बाद मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती. देखो यहाँ पे फाइन. अगर वापस उसको अनप्रोटेक्ट करना है तो सिलेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट द शीट. यू कैन गिव द पासवर्ड अगेन लाइक दिस. यस, तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी शीट को. देन नेक्स्ट वन इज लॉक द शेल. नेक्स्ट वन इज लॉक द शेल. सो सिलेक्ट दिस एंड फॉर्मेट द ऑप्शन एंड लॉक द शेल. First of all, I can write something. For example, I can write BCA. Yes, and then I want to lock this. So you can just lock the cell. आप लॉक कर दोगे ना, उसके बाद इसका इफेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप प्रोटेक्ट करोगे तब. तो सिलेक्ट प्रोटेक्ट. जब लॉक करते हो उसके बाद हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सो प्रोटेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट. क्या अलाउ करना है हमें, तो यहाँ पे लॉक सेल सिलेक्ट करना अलाउ करना है. ओके, तो मैं सिलेक्ट करना अलाउ कर सकती हूँ यहाँ से. यस, देन जस्ट क्लिक ऑन ओके. फाइन एंड गिव द पासवर्ड ओवर हियर. यस, एंड देखो मैं और कोई भी सेल में कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट ये जो मेरा लॉक सेल है ना उसको सिलेक्ट करके उसमें चेंज कर सकती हूँ.
फाइन फॉर द प्रोटेक्शन. यस, सो उसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं वापस. और अगर मैंने जो ये सेल लॉक किया है, फॉर एग्जाम्पल लॉक द सेल, और फिर मैं प्रोटेक्ट करती हूँ और मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करके देना है, देन बोथ check marks you can remove it and give the password again. And then you can try to change it. कुछ भी नहीं हो रहा है, सेल सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है. यस, मैं क्लिक कर रही हूं पर मेरा कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा है. सो दिस इज योर प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट योर शीट, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट योर शेल. फाइन. नाउ ये तो क्या हो गया, जस्ट मैंने एक शीट को प्रोटेक्ट किया, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसा. पर अगर ऐसा चाहिए कि पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करो, कि जब आप वर्कबुक ओपन करोगे ना तब भी मुझे क्या करना है, पासवर्ड देना है. सो जस्ट क्लोज करने के टाइम पे आपको सेव का ऑप्शन पूछेगा, तो उससे पहले आप यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कर देना. या तो सेव पे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सेव पे, अदरवाइज कर रहे हो तो सेव एज पे क्लिक करो. देन कहाँ पे सेव करना है, सेम ही नाम से सेव करना है, बुक 1. पर मुझे ये बुक 1 में पासवर्ड देना है, तो सेव एज में आपको नाम चेंज नहीं करना है, ओवरराइट कर देना है. जस्ट बुक 1. देन टूल्स में जाना है, देन जनरल ऑप्शन. टूल में जनरल ऑप्शन में जाओगे तो पासवर्ड आपको देगा, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, री एंटर द पासवर्ड. देन ओके करोगे और यहाँ पे सेव कर. मुझे दूसरे नाम से वर्कबुक सेव नहीं करना है, इसी नाम से. सो सेव इट, रीराइट, यस, एंड ये मेरी वर्कबुक सेव हो गई. जस्ट क्लोज इट. मैंने क्लोज कर दिया. फाइन. नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन ओपन द वर्कशीट. जस्ट ओपन माई एक्सेल एंड देन वर्कबुक 1. वर्कबुक 1 में ओपन करती हूं. सो इट विल आस्क मी द पासवर्ड. व्हेन आई गिव द पासवर्ड, then and then only it will open my workbook. Fine all of you. Yes, तो इस तरह से आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पूरी एक शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. फाइन. नाउ सेम वे इफ आई वांट टू रिमूव द पासवर्ड, सो वही प्रोसीजर अगेन करना है. जस्ट फाइल में जाके सेव एज, वापस ब्राउज में जाके आपको वर्कबुक और टूल्स में जाके जनरल, पासवर्ड जो दिया है जस्ट रिमूव इट एंड प्रेस ओके एंड सेव इट. रीराइट करना है, यस. तो ये हो गया मेरा रिमूव द पासवर्ड. अगेन आई कैन ओपन माई वर्कशीट, वर्कबुक 1. It will open. So are you getting this? How to open the worksheet and all? Yes, fine. All of you, I hope you understand this all operations of Excel. Fine all of you. Okay. Bye. Thank you.